Welcome students. Most of the students after completing their 10th exam, they often ask me a question, Sir, what subjects we are going to take in our 11th class? They often got confused regarding this. Lots of questions comes to their mind whether science stream is better, commerce stream is better, arts stream is better. Since I am a science teacher, so here I am making a small presentation in order to tell the students regarding the benefits of taking science stream as their career option. So let's begin. So basically science stream, when while taking subjects in 11th class, students think based on their percentage, what sort of percentage they are getting. It's a general mindset they have. They think if they got 70 plus, then it is better for them to go for science stream. If they are getting 60 plus percentage, then it's good for them to take commerce. And if they are getting less than 60%, they go for arts. But in my opinion, this is a wrong way of selection. ये बहुत ही गलत तरीका है. आप परसेंटेज के बेस पे ये डिसाइड मत कीजिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सी स्ट्रीम नहीं लेनी है. देन द क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड, व्हाई मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गो फॉर साइंस एज देयर कैरियर ऑप्शन. मैक्सिमम बच्चे साइंस क्यों लेते हैं अपने कैरियर ऑप्शन को चूज करने के लिए? तो इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं. फॉर एग्जांपल, सक्सेस रेट इज वेरी हाई. Success rate is very high for those who are going for science streams. Also, high earning job and high job opening. And also, it covers wide range of career option. For example, if a person who took science stream in 11th class and after completing their schooling, if he or she decides to go for arts and commerce, then he or she can easily switch on to those subjects very easily. So it's a wide range of career option which provides science stream. In this world of economy where money matters a lot, science is a better option to go for, because in science stream you have high rate of success, and above that you have high earning capacity. You can earn high in a very small span of time, and also the job opening in this stream is very high. So therefore the chances of getting job in this field is early. Career options. So in science we have mainly two streams, basically PCM and PCB, where PCM stands for physics, chemistry and mathematics. So in this PCM there are various career options that we can choose later on. For example, we can go for engineering, in which we can do engineering in aeronautics, it is related to plane aviations. Similarly, we can go for computer science engineering, electronics and communication engineering, electrical and electronics engineering, electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering. Similarly, we can go for simply doing BSc. So BSc offers lots of options. We can go for physics honors, chemistry honors, maths honors, physical science, computer science, architecture. It is broadly a part of civil engineering. Then if you want to serve your nation in terms of defense, you can go for Indian Defense Services, for example Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, DRDO, Defense Research and Development Organization. And also you can be a scientist
or a research fellow. Whereas if you take bio in 11th class, that is PCB, physics, chemistry and bio. So again it offers a variety of courses. For example, food tech. In this you can do a technical degree in food technology. Then microbiology, forensic, medical lab technology, biotechnology. So these are the futuristic fields in which in future these fields are going to enhance the job opportunities. Then we have common fields, for example, B Pharma, nursing, operation theaters, rehabilitation therapy, audio and speech therapy, psychotherapy, physiotherapy, botany, geology, life science. So you can go for all these things. There are variety of options. Is career in science interesting? क्या साइंस में कैरियर बनाना एक इंटरेस्टिंग चीज है? क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं कि साइंस के बच्चे काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. साइंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. कैसे? साइंस is all about innovation, discovery and research. With the help of science, we can not only observe but can explore our natural world. For example, why sky is blue, how birds learn to sing, can we travel in time, can superhero exist, what does Mars look like, and many such questions we quest about. हम इन सभी क्वेश्चनों के आंसर साइंस में या साइंस के द्वारा हम इनके क्वेश्चंस के आंसर हासिल कर सकते हैं. हम ये चीज़ें पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा ये सवाल उठता है कि आकाश नीला क्यों होता है, बर्ड्स गाना कैसे गा पाती है, मार्स पे लाइफ कैसी होगी, क्या हम वहाँ पे कभी पहुँच पाएंगे. टाइम ट्रेवल के बारे में काफ़ी सारी मूवी बन चुकी है, तो एक हमेशा एक दिमाग में रहता है कि क्या ये साइंस में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं, क्या सुपर हीरो रियल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. तो इन सभी सवालों के जवाब हमें साइंस में मिलते हैं. साइंस इज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग पीपुल्स लाइफ बाय डेवलपिंग आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, nature, world and the universe. Development in science is limitless like our universe. तो साइंस में कोई लिमिट नहीं है, ना ही आपके सोचने की, ना ही आपके काम करने की, जैसे कि यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं होती. आप अपने आप को जितना एक्सप्लोर करोगे, आप उतनी ही नई नई चीज़ों से रूबरू होगे, आप उतनी नई नई चीज़ें सीखोगे. आप न्यू थिंग्स कैन बी डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ साइंस. What is the scope of science? अब साइंस में फ्यूचर क्या है, क्या स्कोप क्या है साइंस अगर आप लेते हो तो? इट इम्प्रूव्स लॉजिकल थिंकिंग, आपके अंदर सोचने समझने की ताकत ये लेके आता है. इट इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आप किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करते हो, ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाती है और यही चीज़ आपके काम आती है आगे चल के. जब आप एग्जाम क्रैक करते हो तो उसके अंदर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है. यानी कि कभी भी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो एक साइंस के बच्चे की जो उन एग्जाम को क्रैक करने की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है. और यही चीज़ मैंने स्टार्टिंग वाली स्लाइड में बताया था कि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होती है साइंस के बच्चों की, वो इसी वजह से ज़्यादा होती है. ठीक है ना, कि वो एग्जाम को बहुत ईजिली क्रैक कर लेते हैं क्योंकि वो शुरू से उस माहौल में रहे हैं. ठीक है ना, उसकी स्किल जो है वो शुरू से डेवलप हो जाती है उनकी. साइंस टेल्स लॉट अबाउट हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, कार, यूनिवर्स, सैटेलाइट, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इनके बारे में हमें समझने को सोचने को मिलता है. मोबाइल कैसे काम करता है, कार कैसे चलती है, यूनिवर्स कैसे बिहेव करती है, सैटेलाइट कैसे वर्क करती है. तो ये जो इनोवेटिव चीज़ें हैं, ये जो हमारे दिमाग में कई बार सवाल ऐसे आते हैं, तो इनके जवाब हमें साइंस में मिलते हैं. साइंस टेल्स अस हाउ थिंग्स वर्क फ्रॉम एन एटम टू द यूनिवर्स. तो एक छोटा सा जो पार्टिकल होता है एटम, उससे लेकर और एक सबसे बड़ी जो चीज़ है यूनिवर्स, वहाँ तक पूरा फैलाव जो है साइंस में हमें देखने को मिलता है. और हम चीज़ों को एक बारीक, एक माइक्रो पार्टिकल से लेकर और एक मैक्रो पार्टिकल तक हम जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. जॉब्स इन साइंस इज नॉट लिमिटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. साइंस के अंदर जो जॉब है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंदर हम एस्ट्रोफिजिक्स, मरीन बायोलॉजी, जियोलॉजी,
फार्माकोलॉजी, इन सब चीज़ों को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें भी दुनिया भर के कैरियर ऑप्शन है इसके अंदर। दूसरा, आजकल जैसे फोरेंसिक इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा चल रहा है, फोरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी जो फ़िलहाल जो कोरोना वायरस का जो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें डॉक्टर्स की, नर्सेज की कितनी कमी है। ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हेल्थ से रिलेटेड है उसमें कितने स्कोप हैं काम करने के लिए। ऐसे ही इतनी मास पॉपुलेशन को अगर हमें फीड करना है तो उसके लिए एग्रीकल्चरल गुड्स को बढ़ाने के लिए, या उसमें जो एग्रीकल्चरल जो टेक्निक हमें इम्प्रोवाइज़ करनी है उसके अंदर काम करने के लिए कितना स्कोप है, तो वो सब हमारे सामने साइंस की बदौलत इसमें है। तो हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हम अपना कैरियर अगर इसमें बनाते हैं तो हम अपने आप को इन चीज़ों में एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, इफ़ यू गिव योर बेस्ट यू आर गोइंग टू एक्सेल इन लाइफ, नो मैटर व्हाट यू चूज टू डू। अगर आप अपनी लाइफ में अगर आप अपना बेस्ट देते हो तो फिर आपको डेफिनेटली सक्सेस हासिल होगी। फिर आप चाहे कोई सी फील्ड चूज़ करो। मैं किसी भी फील्ड को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, साइंस भी ठीक है, कॉमर्स भी ठीक है, आर्ट्स भी ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आपको अपना 100% देना है। वर्ल्ड नीड्स ओनली पैशनेट पीपल हु डू देयर जॉब होल हार्टेडली। दुनिया उन्हीं लोगों की कदर करती है जो अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से करते हैं, और वही लोग कामयाब होते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझने में हेल्पफुल होगा कि हमें 10th के बाद क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूँ तो मैंने थोड़ा सा साइंस के ऊपर थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।